Okay. So geometry का first topic is straight lines, pair of straight lines and circles. अगर हमारे पास कोई straight line है y is equal to mx, अगर वो straight line origin से पास हो रही है, उसका slope positive m है, तो उस लाइन की इक्वेशन होगी y is equal to mx. एंड अगर वो सेम लाइन थोड़ी सी ऊपर शिफ्टेड है बाय एन अमाउंट ऑफ c, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा y is equal to mx plus c. So this is the general equation of a straight line. Y is equal to mx plus c, where x is the x coordinate, m is the slope, and c is the y intercept of the straight line. ठीक है, तो अगर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं, एक y is equal to m1x और दूसरी y is equal to m2x. अगर हम उन दोनों की इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दें, तो वी विल राइट y माइनस m1x मल्टीप्लाइड बाय y माइनस m2x इज इक्वल टू 0. तो इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे, वी विल गेट एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0. So this represents a pair of straight lines passing through origin. अगर आप किसी भी दो लाइंस में कोई भी पॉइंट लेंगे, that point will satisfy this equation of pair of straight lines. Okay. So let us start with the distance formula between 2 points. Let us say we have one point x1 comma y1 on a straight line and another point x2 comma y2. The distance between these 2 points will be given by d is equal to square root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. एंड अगर हमें इन दोनों पॉइंट्स को m/n रेशियो में डिवाइड करना हो, we need to find the coordinates of a point C which divides the line segment AB in the ratio m/n. Then इस C point के coordinates will be given by the weighted mean formula. तो C का x coordinate will be given by nx1 plus mx2 divided by x1 plus x2 divided by m plus n. तो इसमें हमने क्या लिया है, x1 जो a कोऑर्डिनेट है उसके ऑपोजिट जो रेशियो था n उसको लिया है, और x2 कोऑर्डिनेट के ऑपोजिट जो रेशियो था m उसको लिया है. Similarly, the y coordinate of this point C will be given by ny1 plus my2 divided by m plus n. तो आप देख सकते हो that if the ratio is 1:1, then C is the midpoint, और तब coordinates will just be x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2. If m/n is 1:2, then accordingly C will be closer to A or closer to B. अब ये हमारा इंटरनल डिवीजन था, हमारा एक्सटर्नल डिवीजन भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल m was like this and n was negative. So in that case also you can find the coordinates of the point C which divides the line segment in a ratio of 3:, negative number. You will apply the same formula but then n will be negative. ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट आता है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल. अगर हमारे पास एक ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी, तो सेंट्रॉइड के इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स विल जस्ट बी the average of the x and y coordinates of A, B and C. So let's say point P is the centroid. So P के coordinates will be xa plus xb plus xc divided by 3 and ya plus yb plus yc divided by 3. ठीक है, तो this centroid will also be the point which connects, which is the meeting point of all the medians. ओके, तो इसमें नेक्स्ट आता है हमारा स्लोप फॉर्मूला और द कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी. Suppose we have 3 points on this axis A, B and C.
we have to check whether the 3 points are collinear or not. Their x coordinates and y coordinates are given to you. So how will you check whether the 3 points are collinear? There are two ways. One is using the determinants, other is using the slope of lines. So let us study the first method. First you will calculate the slope of line connecting AB. Then you will calculate the slope of line connecting AC. अगर ये दोनों लाइंस के स्लोप इक्वल हैं, दैट मीन्स द 3 points आर कोलिनियर. अगर स्लोप्स डिफरेंट है, दैट मीन्स द 3 points फॉर्म अ ट्राइंगल एंड दे आर नॉन कोलिनियर. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ yb माइनस ya अपॉन xb माइनस xa is equal to yc minus ya upon xc minus xa, then the 3 points are collinear. ठीक है, तो ये था हमारा स्लोप वाला तरीका. अब हम देखते हैं डिटर्मिनेंट्स वाला तरीका. Let's say we have 3 points forming a triangle A, B and C. इनके हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं XA, YA, XB, YB एंड XC, YC. तो पहले हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स, एंड अगर वो एरिया 0 होगा, दैट मीन्स द 3 points आर कोलिनियर. So the other way to check for collinearity is to calculate the area of the triangle formed by the 3 points. If the area is positive, that means the points are non-collinear. If the area is 0, that means the points are collinear. So इसका area will be given by area of triangle ABC will be given by the determinant 1/2 times. तो पहले रो में आप XA, XB और XC लिख दोगे पहले कॉलम में. दूसरे कॉलम में you will write YA, YB, YC. And तीसरे कॉलम में you will just write 1, 1 and 1. So this is the area of a triangle जिसके तीनों coordinates आपको given है. अगर ये area 0 आता है, that means the 3 points are collinear. ठीक है, क्लियर है. अब हम देखते हैं position of a point with respect to a straight line. Let us say हमारे पास एक random straight line है ax plus by plus c is equal to 0. We have to identify whether the coordinates of point A, which are given by x naught comma y naught, whether they lie on the line, above the line or below the line. तो कैसे करेंगे? इस कोऑर्डिनेट्स को लाइन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. इफ ax naught plus by naught plus c, अगर ये 0 है, दैट मीन्स द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन. सिमिलरली अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, that means the point lies above the line. और अगर ये सेम क्वांटिटी नेगेटिव है, that means the point lies below the line. तो आप किसी भी पॉइंट का एक लाइन के रिस्पेक्ट में पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड. नेक्स्ट आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन. तो वी हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस एंड वी नो द इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए. तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए व्हाट यू विल डू इज, so perpendicular distance will just be equal to the absolute value of ax naught plus by naught plus c divided by square root of a square plus b square. अगर ये लाइन पर ही होगा पॉइंट, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 आएगा बिकॉज द न्यूमरेटर विल बी 0. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. एंगल बिटवीन टू लाइंस हैविंग डिफरेंट स्लोप्स. लेट अस से एक लाइन है y इज इक्वल टू m1x, दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू m2x. वी हैव टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस. तो कैसे निकालेंगे? सो इसमें tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला लगेगा. अगर हम ये बड़े वाले एंगल को θ1 ले लें और ये छोटे वाले एंगल को θ2 ले लें, तो हमें पता है tan of θ1 is equal to m2 and tan of θ2 is equal to m1, क्योंकि ये दोनों उस लाइन का स्लोप है. हमें निकालना है थीटा विच इज इक्वल टू
थीटा 1 माइनस थीटा 2। सो उसके लिए वी विल यूज द इक्वेशन दैट tan of theta 1 minus theta 2 is equal to tan of theta 1 minus tan of theta 2 divided by 1 plus tan theta 1 tan theta 2। ये जो आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ी थी, तो इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। सो वी विल गेट tan ऑफ थीटा, जो एंगल हमें निकालना है उसका tan, दिस विल बी गिवन बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2। m1 m2 को हमने रिप्लेस कर दिया इक्वेशन में। ठीक है, तो अगर हमें दो लाइंस का स्लोप दिया है तो उसके बीच वाले एंगल का tan निकालने के लिए वी विल यूज दिस फॉर्मूला। तो अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो थीटा 0 होगा बिकॉज tan थीटा 0 हो जाएगा। अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा बिकॉज tan ऑफ 90 इज इंफिनिटी। तो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए 1 plus m1 m2 will be equal to 0, from which we will get m1 m2 is equal to -1। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस के लिए दोनों स्लोप इक्वल होंगे, परपेंडिकुलर लाइंस के लिए प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स विल बी -1। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। लेट अस से वी हैव टू लाइंस व्हिच आर पैरेलल। सो पहले लाइन का इक्वेशन इज ax plus by प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब दूसरी लाइन इसके पैरेलल है तो a और b सेम रहेंगे, बस c चेंज होगा। सो दूसरी लाइन विल बी ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस विल बी गिवन बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें भी हम ऐसे कर सकते हैं, इस लाइन पर कोई पॉइंट ले सकते हैं और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो यही सेम डिस्टेंस आएगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। सपोज हमारे पास ये दो लाइंस दे रखी हैं। पहली लाइन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। We have to find the equation of all the family of lines which are passing through the point of intersection of these two curves। तो यानी कि हम उस फैमिली में ये वाली लाइन भी इंक्लूडेड होगी, ये वाली लाइन भी इंक्लूडेड होगी, ये वाली लाइन भी इंक्लूडेड होगी। सारी लाइंस जो इस पॉइंट से पास कर रही हैं वो सब इंक्लूडेड होंगी। तो उस फैमिली का इक्वेशन लिखने के लिए व्हाट वी डू इज वी टेक अ मिक्सचर ऑफ बोथ द टू इक्वेशंस and then add them up using a given constant. So the family will be represented by a1x plus b1y plus c1 plus lambda times, lambda is any variable, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो अलग अलग लैम्डा वैल्यूज के लिए आपके पास अलग अलग लाइंस की इक्वेशन आएगी। तो अगर आपको निकालना हो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through the point 2, 3 and belongs to the family of lines formed by the intersection of these two lines। तो आप पहले फैमिली की इक्वेशन लिख दोगे, फिर 2, 3 से पास करा के लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास नई लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, which will be this line। ओके, तो ये था हमारा फैमिली ऑफ लाइंस। अब आता है बाइसेक्टर्स ऑफ लाइंस। हमारे पास दो लाइंस दे रखी हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों लाइंस की बाइसेक्टर की फैमिली ऑफ इक्वेशंस लिखनी है। यानी कि
जो बाइसेक्टर वाली लाइंस होंगी, एक तो ये वाली लाइन होगी जो एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट कर रही होगी, और दूसरी लाइन होगी ये वाली जो ऑब्ट्यूस एंगल को बाइसेक्ट कर रही होगी। तो इन दोनों लाइंस की हमें इक्वेशन लिखनी है। सो कैसे लिखेंगे? सो फॉर दिस वी विल यूज द प्रॉपर्टी that the perpendicular distance of any point on the bisector to each of the two lines will be the same. तो हम इस लाइन को x, y पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, then perpendicular distance to each of the two lines will be the same. Hence the equation of the bisector will be given by a1x plus b1y plus c1 absolute value divided by square root of a1 square plus b1 square is equal to a2x plus b2y plus c2 divided by square root of a2 square plus b2 square. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट द फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द एंगल बाइसेक्टर। अच्छा, इसमें कैसे पता लगाओगे दैट हमारे पास ये एक्यूट एंगल वाली बाइसेक्टर आए या ऑब्ट्यूस एंगल वाला बाइसेक्टर आए? तो फॉर दैट जब आप ये मॉड्यूलस को हटाओगे तो प्लस और माइनस साइन आएगा आपके पास। एक इक्वेशन में प्लस यूज करोगे तो वो एक्यूट वाला होगा, दूसरे इक्वेशन में माइनस यूज करोगे तो वो ऑब्ट्यूस वाला होगा। तो अगर चेक करना है कि एक्यूट वाला या ऑब्ट्यूस वाला है तो यू विल फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। So angle between the two lines we have seen can be calculated using the formula that tan of theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। अगर ये वाला tan थीटा 45 डिग्री से कम आया, इसका मतलब बाइसेक्टर और ओरिजिनल लाइन का एंगल 45 से कम है, इसका मतलब ये वाला बाइसेक्टर एक्यूट वाला है। या आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि बाइसेक्टर और लाइन के बीच का एंगल निकालो। अगर ये वाला एंगल का tan 1 से कम आया तो इसका मतलब ये वाला एंगल 45 से कम है, तो इसका मतलब टोटल एंगल 90 से कम है। कैसे भी कर सकते हो आप, बहुत सारे तरीके हैं, बस ये तो बस एक ही तरीका था। You can find the angle in multiple ways. So this will be the equation of the angle bisector between two lines. ओके, अब हम करते हैं फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशंस की स्टडी। सपोज करो हमारे पास दो लाइंस हैं विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। One of them is y is equal to m1x, other is y is equal to m2x. So we can represent the two lines passing through origin with different slopes as shown. एक लाइन होगा with slope tan theta is equal to m1 and दूसरा लाइन होगा y is equal to m2x। तो हमें इन दोनों लाइंस का पेयर ऑफ फैमिली ऑफ का इक्वेशन लिखना है। So the equation will be given by the product of the equations of the two lines, which is y minus m1x times y minus m2x is equal to 0. So जब हम इसे expand करेंगे we will get y square minus m1 plus m2 xy plus m1 m2 x square। तो इसमें आप एक चीज नोटिस कर सकते हो दैट जब भी हम फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन लिखेंगे all the terms will be having a degree 2, which means the equation is homogeneous। जब आप पैराबोला, एलिप्स या सर्कल का इक्वेशन लिखते हो उसमें हमेशा अलग अलग डिग्री वाले टर्म्स भी आते हैं, बट अगर आप फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन लिख रहे हो विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऑल द टर्म्स विल बी होमोजीनियस। तो if we represent the general equation of a family of lines passing through origin, a pair of straight lines passing through origin will be given by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. This is the general equation of a pair of straight lines passing through origin.
and this is the equation that we calculated using the slopes of two lines whose tangents were m1 and m2. अब हम इन दोनों लाइंस को इक्वेशन कर कंपेयर कर सकते हैं. So if we multiply the entire above equation by the factor b, then we get by square. ऊपर वाली इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे y स्क्वायर का टर्म दोनों में सेम आ जाए और बाकी टर्म्स को हम कंपेयर कर लेंगे. तो इससे हमारा आता है 2h is equal to minus b m1 plus m2 एंड x स्क्वायर वाले टर्म को कंपेयर करने से आता है a is equal to m1 m2 b. तो इससे हमारा सम ऑफ स्लोप्स आ जाता है m1 plus m2 is equal to negative 2h by b and m1 m2 is equal to a by b. तो अगर आपको किसी भी पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन दी हो तो a h और b कोएफिशिएंट से आप उसके स्लोप्स निकाल सकते हैं. Okay, so let us see what will be the angle between the two lines in terms of A, B and H. So we know that tan of theta or the angle between the two lines is given by absolute value of m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2. तो इसको हम h, a और b के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? पहले हमें m1 minus m2 निकालना होगा using these two equations. और m1 m2 तो हमें पता ही है. So let us try to find m1 minus m2. So m1 minus m2, this will be equal to the square root of m1 plus m2 whole square minus 4 m1 m2. So ये इक्वेशन सही है क्या? हमने यूज करा है that m1 plus m2 square is m1 square plus m2 square plus 2m1 m2. और अगर हम 4m1 m2 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस जो साइन है वो माइनस हो जाएगा. और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे देन वी विल गेट m1 minus m2. हम इसको लिखें अपने a, b और h के टर्म्स में, we will write m1 minus m2. This is equal to plus minus square root of m1 plus m2 square is 2h by b whole square. m1 m2 is given by a by b. तो हमारे पास m1 minus m2 आ गया in terms of a, h and b. So this is equal to square root of 4h square minus 4ab divided by b square. तो इसको हम वापस अपनी इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे. So tan theta was equal to m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2. m1 minus m2 हमने निकाल लिया. Therefore this is equal to absolute value of 2 times square root of h square minus ab divided by b, और m1 m2 is equal to a by b. So this will be 1 plus a by b. तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे we will get tan theta is equal to absolute value of 2 times square root of h square minus ab divided by a plus b. ठीक है, तो अगर h square is equal to ab, इसका मतलब angle between the two lines is the same or the two lines are parallel.
वहां पर हमने देखा था m1 इज इक्वल टू m2 होगा तो दोनों लाइंस पैरेलल है। यहाँ पर द कंडीशन इज इफ h स्क्वायर इज इक्वल टू ab देन द टू लाइंस आर पैरेलल। if h square is less than ab, that means the two lines are imaginary lines, they are not real lines. और अगर h square will be greater than ab, इसका मतलब tan theta will be some number and the lines are real and distinct. ओके तो एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन ऑफ द लाइंस है 2x² प्लस 4xy minus 2y² is equal to 0. Find the angle between the two lines forming the pair. tan थीटा इंफिनिटी होगा, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, तो इस केस में a हमारा 2 है, h हमारा 2 है और b हमारा -2 है। तो व्हेन वी सब्स्टिट्यूट दिस, डिनोमिनेटर बिकम्स 0, सम नंबर डिवाइडेड बाय 0। तो ये आता है हमारा इन्फिनिटी, विच मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज और द टू लाइंस फॉर्मिंग द पेयर आर परपेंडिकुलर। तो वहां पर हमने कंडीशन देखा था m1 m2 शुड बी इक्वल टू -1। यहाँ पर कंडीशन है a प्लस b शुड बी इक्वल टू 0 फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, तो ऐसे ही हम किसी भी लाइन का इक्वेशन से एंगल बिटवीन द पेयर्स निकाल लेंगे। अब इसमें देखने वाली बात है कि अगर हमारे पास 3 लाइंस का पेयर होता 2 की जगह, तो हमारे टर्म्स होते ax³ और bx² प्लस समथिंग xy² प्लस समथिंग y³। तो आप देख सकते हो जब भी हमारी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस होंगी, उनमें हमेशा एक टर्म की पावर सेम रहेगी। तो दिस रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ 3 लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। Similarly, if we have to write down the equation of a family of n lines passing through the origin, तब हर एक टर्म का पावर n हो जाएगा। तो अगर हमें लिखना हो द फैमिली ऑफ n स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, उनके इक्वेशन क्या होगा? तो इट विल बी गिवन बाय टर्म्स लाइक दिस और लास्ट में आएगा हमारा byn। So we can say that a homogeneous equation of degree n represents n straight lines passing through the origin. Okay, तो अब हम आगे देखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अभी तक हमने देखा था इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर वो ओरिजिन से पास नहीं हो रही हो तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उन फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस को? तो अगर ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो हमारे पास और भी टर्म्स आएंगी। तो पहले 3 टर्म्स तो आएंगे ही आएंगे, बट साथ में हमारे पास 4 टर्म्स और आएंगे। एक आएगा 2gx प्लस 2fy प्लस c, so this will be the equation of a pair of lines passing not through the origin. अब इसमें आप देख सकते हो कि अगर इस टाइप का इक्वेशन है तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, सर्कल है, एलिप्स है, पैराबोला है या हाइपरबोला है। तो उसके लिए वी हैव टू क्रिएट अ discriminant or the determinant of this
इक्वेशन इज गिवन बाय, तो हम पहले डायगोनल भर देते हैं विच इज ए बी एंड सी, एंड द रिमेनिंग टर्म्स एफ जी एंड सी वी राइट लाइक दिस। तो पहले एफ लिख देते हैं, फिर जी लिख देते हैं और फिर एच लिख देते हैं। तो ये आ जाता है हमारे पास डिटर्मिनेंट या फिर डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल है, अगर ये जीरो के इक्वल है, दैट मीन्स दिस इज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो इस इक्वेशन को पता करने के लिए कि वेदर इट इज अ स्ट्रेट लाइन और नॉट, पहले आप ये डिस्क्रिमिनेंट निकालो। अगर ये जीरो है दैट मीन्स इट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब देखते हैं सर्कल के लिए क्या कंडीशन होगी। सर्कल के लिए कंडीशन होगी दैट a शुड बी इक्वल टू b एंड h शुड बी इक्वल टू 0। अगर a और b इक्वल है एंड h 0 है, दैट मीन्स इट इज अ सर्कल। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा नॉन जीरो है, इफ d इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब स्ट्रेट लाइंस तो नहीं है, या तो पैराबोला है या हाइपरबोला है या एलिप्स है। तो उस केस में हम एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 के इक्वल है, दैट मीन्स इट इज अ पैराबोला। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 है, दैट मीन्स इट इज एन एलिप्स। और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स इट इज अ हाइपरबोला। और ये तीन हम तब भी चेक करेंगे व्हेन द डिस्क्रिमिनेंट इज नॉन जीरो। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा तब तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। तो अगर आपके पास एक जनरल इक्वेशन दे रखा होगा, सबसे पहले आप उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे। अगर वो जीरो है तो इट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। फिर अगर वो जीरो नहीं है तो पहले आप उसके ए और बी चेक करोगे। अगर ए और बी इक्वल है एंड एक्स वाई का कोएफिशिएंट जीरो है, देन इट इज अ सर्कल। अगर ये भी ट्रू नहीं है तो आप एच स्क्वायर माइनस ए बी निकालोगे और अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करोगे कि पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला है। ओके, नेक्स्ट आता है होमोजेनाइजेशन ऑफ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। मान लो आपके पास कोई कोनिक का इक्वेशन दे रखा है और आपको एक लाइन गिवन है विच इज कटिंग द कोनिक थ्रू सम पॉइंट्स। लेट्स से दिस इज द कोनिक। इसको हम थोड़ा क्लियर बना देते हैं। लेट्स से दिस इज द कोनिक जिसका इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। ये कुछ भी हो सकता है, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इसका इक्वेशन हमें दिया हुआ है and we are also given a straight line which is cutting this conic at 2 points, point A and point B. इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है Lx plus my plus n is equal to 0. Now you have to find the equation of the pair of straight lines passing through the origin and joining points A and B. Okay, तो आपको लाइन OA एंड OB का पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन लिखना है। तो आप कैसे करोगे? First, you will take this entire conic equation. Then you know that pair of straight lines which are passing through the origin, उनमें हमेशा डिग्री हर टर्म का 2 होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ भी डिग्री 2 से कम है वहाँ वहाँ पे आप एक फैक्टर x और y का और इंट्रोड्यूस करोगे। तो लेट अस से ax स्क्वायर, इसमें तो डिग्री 2 है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। सेकेंड टर्म 2hxy, इसमें भी डिग्री 2 है तो इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे। थर्ड टर्म में भी डिग्री 2 है, सो वी विल नॉट चेंज इट। अब जो अगले दो टर्म्स हैं उनमें डिग्री 1 है, तो इनमें हमें एक डिग्री और इंट्रोड्यूस करनी है। सो दैट वी विल डू बाय राइटिंग Lx प्लस my माइनस माइनस। तो बेसिकली हम 1 की जगह Lx
प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन लिख देंगे, जिससे एक और डिग्री का टर्म इंट्रोड्यूस हो जाए इस इक्वेशन में. दिस प्रोसेस इज नोन एज होमोजेनाइजेशन ऑफ अ नॉन होमोजेनियस कर्व. सिमिलरली हम एफ वाई में भी ये सेम टर्म इंट्रोड्यूस कर देंगे. अब जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसमें डिग्री 0 है, तो उसमें हम इसका स्क्वायर इंट्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, ये जो इक्वेशन आएगा दैट विल गिव यू द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड टचिंग पॉइंट्स ए एंड बी. ओके, तो इसमें आप देख सकते हो अब हमारे हर टर्म का डिग्री 2 है और अब ये करेक्ट फैमिली बन गई है. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट ऑफ लाइंस विच आर द एंगल बाइसेक्टर्स. मान लो हमें ये दोनों लाइंस का इक्वेशन दिया हुआ है पेयर ऑफ लाइंस का, विच इज गिवन बाय ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. This is the equation of line L1 and line L2. अब हमारा ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस विच आर द एंगल बाइसेक्टर. तो बेसिकली इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन का पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन लिखना है. तो इसके लिए या तो आप एंगल बाइसेक्टर निकाल के दोनों लाइंस आइडेंटिफाई कर सकते हो, काफ़ी बड़ा प्रोसेस होगा और फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. The shorter way out is you can use the formula that x square minus y square upon xy is equal to a minus b upon h. तो अगर a, b और h ओरिजिनल लाइंस के कोएफिशिएंट्स हैं जो हमारी एंगल बाइसेक्टर का पेयर बनेगा, दैट विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन. फॉर एग्जांपल, लेट अस से द ओरिजिनल टू लाइंस जिनका इक्वेशन हमें दिया हुआ है दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 4xy minus 2y square is equal to 0. This is a pair of straight lines passing through the origin. Now we have to identify the equation of pair of straight lines which are the angle bisectors. So we will write the equation of the angle bisectors is x square minus y square upon xy is equal to 2 minus 2 divided by minus 2 which is equal to negative 2. तो हमारे एंगल बाइसेक्टर की पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2xy और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy is equal to 0. This will be the equation of the pair of angle bisectors. ठीक है, इतना क्लियर है. तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, ये कभी कभी पूछ लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स. अब हम चलते हैं सर्कल्स पर. तो सर्कल्स का हमने देखा, द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स इज गिवन बाय a is equal to b and h is equal to 0. So we can say the equation of a circle in general is given by x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. तो एक्स वाई वाला टर्म हमने हटा दिया और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 ले लिया, क्योंकि एक कांस्टेंट दोनों सेम है तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं. सो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. अब इस इक्वेशन में what will be the center and what will be the radius of the circle. So the center will be given by the coordinates minus g comma minus f, and the radius of this circle will be given by the square root of g square plus f square minus c. इसका डेरिवेशन कैसे आता है? लेटर से हमें माइनस जी और माइनस एफ सेंटर वाले सर्कल और इस रेडियस वाले सर्कल की इक्वेशन लिखनी है.
सो वी नो कि अगर सेंटर x नॉट और y नॉट है और रेडियस r है, देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय दिस। ठीक है, तो अब हम इसमें x नॉट को माइनस जी और y नॉट को माइनस एफ डालेंगे। सो वी विल गेट x प्लस जी होल स्क्वायर प्लस y प्लस एफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब देखो देखो ये वही सेम इक्वेशन आ रही है या नहीं। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड कि अगर ये वाला इक्वेशन है, इसका सेंटर होगा माइनस जी को माइनस एफ, रेडियस होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस। तो अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जीरो है, दैट मीन्स इट इज द इक्वेशन ऑफ अ सिंगल पॉइंट। अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी नेगेटिव है, दैट मीन्स इट इज एन इमेजिनरी सर्कल बिकॉज रेडियस उसका नेगेटिव स्क्वायर रूट। और अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव है, दैट मीन्स इट इज अ रियल सर्कल विद अ पॉजिटिव रेडियस। ओके, तो अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं विच इज द, अगर हमें डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हो x1 y1 एंड x2 y2, तो ये हमारे डायमीटर के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं और हमें इस सर्कल की इक्वेशन लिखनी है। तो या तो हम ये कर सकते हैं कि इसका सेंटर निकालें, मिड पॉइंट होगा, और इसका रेडियस निकालें, एंड देन यूज द इक्वेशन x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। या तो हम ये कर सकते हैं, बट दिस प्रोसेस विल बी अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, तो हम ये अवॉइड करते हैं। और इसका एक स्ट्रेट जनरल फॉर्मूला होता है जो हम अप्लाई करते हैं, that is if the endpoints of the diameter of a circle are given to you, then the equation of the circle is given by x minus x1 times x minus x2 plus y minus y1 times y minus y2 is equal to 0। तो इससे हमारी सीधा सर्कल की इक्वेशन आ जाती है। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर एंड पॉइंट्स हमारे 2,3 और 7,8 है, अगर ये डायमीटर ऑफ एंड पॉइंट्स हैं, then the equation of the circle will be x minus 2, x minus 7 plus y minus 3, y minus 8 is equal to 0। This will be the equation of the circle passing through these endpoints as the diameter। Okay, तो अब नेक्स्ट आता है इसमें अ फैमिली ऑफ सर्कल्स। सपोज हमारे पास दो सर्कल्स दे रखे हैं, लेट्स कॉल इट s1 इज इक्वल टू 0, एंड एक दूसरा सर्कल है, इसका इक्वेशन है s2 इज इक्वल टू 0। अगर हमें सभी सर्कल्स की फैमिली का इक्वेशन लिखना हो विच पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स, यानी कि ये वाला सर्कल भी हो जाएगा, ये वाला सर्कल भी हो जाएगा, ऐसे जितने भी पॉसिबल सर्कल्स हैं विच पास थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू पॉइंट्स, उसके लिए वी विल राइट s1 प्लस लैम्डा s2 इज इक्वल टू 0। And then based on the condition that is provided to you, whether the center of the new circle is this, whether the radius of the new circle is this, you can calculate the value of lambda, and उसके according आप new circle की equation लिख सकते हो। अच्छा, इसमें you have to ensure that lambda cannot be equal to -1। why is this condition required? अगर lambda -1 हो जाएगा तो हमारा सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0। तो जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट है वो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ कांस्टेंट बचेगा। तो दैट विल नॉट बी अ सर्कल, दैट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब इसमें फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। अगर सर्कल की इक्वेशन s1 इज इक्वल टू 0 है और हमने कोई पॉइंट लिया x1 y1, तो जब ये x1 y1 s1 इज इक्वल टू 0 में सब्सटीट्यूट करेंगे, अगर वो सब्सटीट्यूट करने के बाद s1 ग्रेटर देन 0 आया, दैट मीन्स द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल।
अगर S1 0 के इक्वल आया दैट मीन्स द पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, एंड अगर S1 लेस देन 0 आया दैट मीन्स द पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस जैसा सिमिलर ही कॉन्सेप्ट है। सो अब आता है हमारा पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो हमें पता है कि सर्कल की इक्वेशन इज गिवन बाय x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ पर h कॉमा k आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर। तो अगर किसी जनरल पॉइंट का इक्वेशन लिखना हो इस सर्कल पे, तो उसके लिए वी कैन से दैट x इज इक्वल टू h प्लस आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू k प्लस आर साइन थीटा। तो हम बेसिकली पहले सेंटर पर जाएंगे और r cos थीटा और r sin थीटा सेंटर से ऐड कर देंगे। दिस विल गिव अस द जनरल पॉइंट ऑन अ सर्कल, एंड हियर थीटा शुड बी बिटवीन माइनस पाई एंड पाई। तो अगर हमारा ये h कॉमा के सेंटर है सर्कल का एंड वी ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस r, देन अगर कोई भी पॉइंट ले, लेट्स से वी टेक दिस पॉइंट, तो h से हमारे x कोऑर्डिनेट में r cos थीटा ऐड होगा व्हिच इज दिस लेंथ, और y कोऑर्डिनेट में हमारा r sin थीटा ऐड होगा व्हिच इज दिस लेंथ। तो a का जनरल कोऑर्डिनेट हो जाएगा h प्लस r cos थीटा कॉमा k प्लस r sin थीटा। इसको हम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स कहते हैं बिकॉज बोथ आर इन्वॉल्विंग अ डिफरेंट वेरिएबल थीटा। ओके, तो अब हम आते हैं कुछ इक्वेशंस पर जो सारे कॉनिक्स के लिए सेम रहेंगी। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास इक्वेशन है कोनिक की ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ये किसी भी रैंडम कोनिक का इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को हम लिखते हैं रिप्रेजेंटेड बाय s इज इक्वल टू 0 वेयर s इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द टर्म्स। अब इसमें कुछ नई नई चीजें डिफाइन होती हैं सच एज s1 एंड t। तो S1 में क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई पॉइंट है x1, y1 और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम S1 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो जो x स्क्वायर वाला टर्म है उसको हम x1 से रिप्लेस कर देते हैं, और जो y स्क्वायर वाला टर्म है उसको हम y1 से रिप्लेस कर देते हैं। तो S1 becomes ax(x1) प्लस 2hxy1 प्लस 2hx1y। तो x स्क्वायर की जगह हमने S1 में सॉरी ये S1 नहीं है, ये t की इक्वेशन है। t में क्या करते हैं, आधा हम पिछले इक्वेशन का रख देते हैं और आधा हम जो पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं उसका रख देते हैं। तो x स्क्वायर की जगह हमने रख दिया xx1, xy की जगह रख दिया xy1 प्लस x1y, y स्क्वायर की जगह वी विल कीप by1। Similarly, 2x की जगह we will write x plus x1, 2y की जगह we will write y plus y1 and c की जगह we will just keep it as c। तो ये हो जाएगा प्लस gx plus gx1 plus fy plus fy1 plus c। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये काफी सारी जगह काम आता है, लाइक टेंजेंट्स निकालने में काम आता है, कॉर्ड्स निकालने में काम आता है, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस निकालने में काम आता है। S1 में क्या करते हैं, हम इसे फुली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो S1 इज जस्ट इक्वल टू ax1 स्क्वायर प्लस 2hx1y1 प्लस by1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। ठीक है, तो t एस और S1 समझ आ गया। ओके, अब हम करते हैं इसके एप्लीकेशंस। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारा होता है टेंजेंट की इक्वेशन निकालने में। अगर हमारा कोई भी इक्वेशन कोनिक का दिया हो, लेट्स से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये सर्कल का इक्वेशन है। और हमें एक पॉइंट x1 y1 पर टेंजेंट निकालना है। तो टेंजेंट का इक्वेशन विल बी गिवन बाय t is equal to 0. Equation of tangent is given by t is equal to 0. तो t हमारा होता है x1 प्लस y1 प्लस gx प्लस gx1 प्लस fy प्लस fy1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट्स, अगर हमारे पास किसी सर्कल पे किसी पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनाने हो तो इन दोनों टेंजेंट्स की पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या होंगी, दैट विल बी गिवन बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू SS1। यानी कि पहली टेंजेंट और दूसरी टेंजेंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनेगा। उस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन विल बी गिवन बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू SS1। ठीक है। तो Yes. टी हमने देख लिया क्या होगा, एस सेम टू सेम वैसा ही रखेंगे, S1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब एक चीज होती है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट। अगर हमारे पास ये कोनिक है और हमें एक पॉइंट दिया है P x1, y1 विद दिस पॉइंट एज द मिड पॉइंट, एक कॉर्ड होगी, उसकी हमें इक्वेशन निकालनी। लेट्स से ये वाली कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट P है। तो इस कॉर्ड का इक्वेशन विल बी गिवन बाय T इज इक्वल टू S1। अगर ये कोनिक का इक्वेशन S इज इक्वल टू 0 है और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, then the equation of the chord passing through the conic which has P as the midpoint will be given by T is equal to S1। ये सर्कल के लिए, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स सबके लिए एप्लीकेबल है। अब आता है हमारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। लेट्स ये हमारा कोनिक है, एक पॉइंट दिया है P जो कि कोनिक के बाहर है जिसका कोऑर्डिनेट्स है x1, y1। अब हम इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स निकाल रहे हैं, एक ये वाला टेंजेंट होगा और एक ये वाला टेंजेंट होगा। हमें फैमिली ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन देख लिया था, इट इज गिवन बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू SS1। अब हमें क्या करना है, ये जो टेंजेंट्स पॉइंट पे कट कर रही हैं इस AB कॉर्ड का इक्वेशन निकालना है। तो इस AB कॉर्ड का इक्वेशन विल बी गिवन बाय T इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो इसको हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं। द लाइन Yes. AB इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और इसका इक्वेशन होगा T इज इक्वल टू 0। तो एक चीज ध्यान रखनी है, जब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख रहे थे दैट वाज आल्सो T इज इक्वल टू 0। जब हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन लिख रहे हैं दैट इज आल्सो T इज इक्वल टू 0। बट जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट में हम पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो ये वाला पॉइंट है, बट जो टेंजेंट में हम पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर रहे थे वो जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट बना रहे हैं वो वाला पॉइंट है। ठीक। तो अगर मैं पीछे जाऊं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने लिखा था T इज इक्वल टू 0। इसमें हम जिस पॉइंट पर टेंजेंट बना रहे थे उसके कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करेंगे। वेरास कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए हम जिस पॉइंट से टेंजेंट्स खींच रहे थे उसके कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा पोल एंड पोलर सर्कल। तो पोल एंड पोलर सर्कल में भी सेम चीज यूज करते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं ये क्या होता है। तो लेट्स से हमारा एक पॉइंट है P विच इज द पोल, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1। अब इस पॉइंट P से हमने एक लाइन ड्रॉप करा कोनिक पर, तो ये लाइन दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगा। एक होगा पॉइंट A और दूसरा होगा पॉइंट B। ठीक है। तो अब अगर हम A और B पॉइंट्स पर टेंजेंट खींचेंगे तो दे विल मीट एट सम पॉइंट हियर। पॉइंट A और पॉइंट B पर हमने टेंजेंट खींचा, इट विल मीट एट सम पॉइंट। इस Yes. मीटिंग पॉइंट के अगर हम लोकस निकालें तो इस मीटिंग पॉइंट का लोकस विल लाई ऑन सम स्ट्रेट लाइन। ठीक है।
तो फॉर एग्जांपल अगर हमने ये वाली लाइन ली तो इसके टेंजेंट हमारा इस पॉइंट पे मीट कर रहा था। अगर हम कोई दूसरा टेंजेंट लेते, अगर हम कोई दूसरा लाइन लेते, लेट्स से ये वाला, तो इसके टेंजेंट्स कहीं और जाकर मीट करते, कहीं इधर जाकर मीट करते। ऐसे ही सारे पॉइंट्स को अगर हम कलेक्शन ले लें तो इन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन विल लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। दैट स्ट्रेट लाइन इज नोन एज द पोलर ऑफ द पोल और द पोलर लाइन। तो पॉइंट P was called the pole point. This straight line जहाँ पर tangents meet करेंगी उसका locus is called the polar line. Okay. तो अगर हमें पोल के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो पोलर लाइन के कोऑर्डिनेट्स विल बी गिवन बाय t is equal to 0. Okay. तो इसमें भी अगर आपको कोई भी कॉनिक दिया हो बिना दिमाग लगाए बस t is equal to 0 लिख देना है, that will be the locus of the polar line. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है पर फिर भी समझ लेते हैं। अगर किसी पोल का पोलर लाइन दिया हुआ है देन उस पोलर लाइन के किसी पॉइंट का अगर पोलर लाइन निकाले तो उसी पोल को इंक्लूड करेगा। सो बेसिकली अगर पोलर लाइन पर कोई पॉइंट Q है तो अगर P की पोलर लाइन पर Q आता है तो Q की पोलर लाइन पर P आएगा। तो एक रेसिप्रोकल इसमें अरेंजमेंट होता है। दोबारा से बोलता हूँ, अगर P पोल की पोलर लाइन पर पॉइंट Q है तो अगर Q को पोल लेकर पोलर लाइन क्रिएट करेंगे तो उसमें P आएगा। ये प्रॉपर्टी इतने काम की नहीं है बट समझ सकते हैं। काम का क्या है, आपको पोलर लाइन का इक्वेशन पूछेगा, लोकस पूछेगा तो आपने सीधा t इज इक्वल टू 0 लगा के फाइंड कर देना है। तो आप देख सकते हो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। t इज इक्वल टू 0 टेंजेंट का इक्वेशन था जहाँ पर पॉइंट लिया था हमने जिस पॉइंट पर टेंजेंट बनानी है। टी स्क्वायर इज इक्वल टू SS1 पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन था और यहाँ पे पॉइंट था जिस पॉइंट से हम दोनों टेंजेंट्स खींच रहे हैं। और t इज इक्वल टू S1, अगर मिड पॉइंट दिया हुआ है तो उस कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी जिसका मिड पॉइंट हमें दिया हुआ है, दैट विल बी t इज इक्वल टू S1। देन अगर हमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना हो तो कोई पॉइंट बाहर से लेंगे और उसको उस कोनिक पर हम एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाएंगे, उसका इक्वेशन होगा t इज इक्वल टू 0। देन पोल दिया हुआ है तो पोलर लाइन का इक्वेशन विल आल्सो बी t इज इक्वल टू 0। ये 5 चीजों में से एक ना एक हर बार पूछते हैं और ये हर कोने के लिए एप्लीकेबल है। तो पेयर ऑफ लाइंस के लिए एप्लीकेबल है, सर्कल्स के लिए एप्लीकेबल है, एलिप्स के लिए एप्लीकेबल है, पैराबोला के लिए एप्लीकेबल है और हाइपरबोला के लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई रैंडम सा कर्व दे देंगे उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ इन 5 के लिए एप्लीकेबल है। ओके तो एक चीज हमारी ये आती है कि अगर हमें टेंजेंट का इक्वेशन दिया हो y इज इक्वल टू mx प्लस c and this is the tangent to a circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. So how will you identify the value of this constant c? तो एक सर्कल दिया हुआ है उसकी टेंजेंट की इक्वेशन दी हुई है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सर्कल का सेंटर हमें पता है -g, -f है। देन वी विल से कि जो सेंटर से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, सेंटर इज -g, -f और टेंजेंट हमारी ऐसी है। तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप करेंगे दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा हमारा m टाइम्स -g -f प्लस c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर
this will be the perpendicular distance from the center to the tangent, and this should be equal to the radius, and the value of the radius is square root of g square plus f square minus c. तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी c की वैल्यू आ जाएगी। कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज करके निकाल सकते हो। ओके, अब एक ये आता है हमारा, अगर हमारा दो सर्कल्स दे रखे हैं S1 इज इक्वल टू 0 और S2 इज इक्वल टू 0, तो जब आप S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन लिखोगे, दैट विल गिव यू द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू सर्कल्स। तो एग्जाम्पल के लिए हम एक सर्कल का इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। दूसरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम एक सर्कल को ऐसे माने, दूसरे सर्कल को ऐसे माने, find the equation of the line, find the equation of the common chord of the circle, ये वाली इक्वेशन लिखनी है। तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन आएगा दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करके। तो सबट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट 6 माइनस माइनस 4 विच इज 10x minus 2 minus 4y plus 2 is equal to 0. This will be the equation of the common chord of the two circles. जब हम देख रहे थे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0, हमने देखा था कि लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू -1। वो इसीलिए था क्योंकि जब लैम्डा -1 होता है देन वी गेट S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, which is not a circle but the equation of a straight line which is the common chord of the two circles. अब एक टॉपिक बचा है हमारा which is the orthogonal circles. So two circles are orthogonals अगर जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर उन दोनों की टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हो। तो ये दोनों लाइंस इन दोनों सर्कल्स की कॉमन मीटिंग पॉइंट पर टेंजेंट्स हैं, एंड आप देख सकते हो कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। Therefore the two circles are orthogonal. So what is the condition? How will you check whether the two circles are orthogonal or not? तो अगर एक सर्कल की इक्वेशन आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरे सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x plus 2f2y plus c2 is equal to 0. These these two circles will be orthogonal if 2g1g2 plus 2f1f2 is equal to c1 plus c2. तो ये सीधा आप कंडीशन याद कर लो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है इसका मतलब टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल।